मैं सुबह से बोला कोई काटा नहीं है। चलो
So the previous lecture we finished up to viroids. Okay, that means we have completed virus and viroids. What is the difference between virus and viroids? जल्दी लिखो chat box में. हम कुछ 1 घंटे पहले हमने बात किया था. No idea. No idea. Difference between virus and viroids. Yeah, in virus, viroids are less molecular weight than virus. Okay, but that is not the main difference, beta. Where about RNA? Okay, so virus means the genetic material RNA surrounded by a capsid. मतलब ये प्रोटीन से या प्रोटीन कवर से कैप्सिड से कवर किया गया एक आरएनए है वायरस. ये जो आरएनए वायरस का जो प्रोटीन कवर जब निकाल दिया, then what is left over? Just RNA, and that RNA is called a viroid. समझ में आया? Viroid is having no protein cover. Now we come to the last part of this chapter, that is lichens. What are lichens? अभी मैं लिचेंस बात करने को पहले आपको एक बात पूछने का है. आपने लास्ट क्लास में algae के बारे में स्टडी किया. You studied about algae. So what do you know about algae? आपको algae के बारे में क्या मालूम है? चैट बॉक्स. आप उधर रीराइट करो ना सैनुद्दीन. मेरा को होस्ट किधर गया? हाँ, एक वेटिंग रूम में डाल दिया. सादिया, गुड, वेरी गुड. Okay. Now algae, when you talk about algae we can say green colored plants. They are green colored plants in the sense they are protista members, and they are green colored. And in green colored one, we have seen some are cyanobacteria blue green algae, and we can see that they are photosynthetic. They can perform their own food. When you talk about fungus के बारे में जब बात किया तब हमने क्या बोला? फंगस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो दूसरों को डिपेंड कर रहे हैं. अब ये algae ऐसा एक ग्रुप है, उनको खुद खाना बनाने को होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स. और फंगे के बारे में बात करें तो फंगे दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, so now in lichen what we are going to see that both these group means the algae and fungi, they are coming and living together. वो दोनों आके एक साथ रहता है. मतलब algae और fungi दोनों अलग अलग कैरेक्टर का है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग बिहेवियर भी ऐसा बोल सकता है. मतलब one is preparing the food, the other one is not preparing the food, but they come together and forming a relationship there, forming an association there, and then they live together. And when they live together, that will develop into a plant-like structure, and we call them as lichen. So lichens are symbiotic. One second. Okay, so lichens we can say they are showing symbiotic associations. Algae and fungi having symbiotic association. What is this symbiotic association? Symbiotic association means there is a mutual relationship. Mutual relationship बोलेगा तो, now I don't want to give any example right now.
So when the situation comes, when we study offline, there I will tell you examples. So when we study about different types of relationship. So symbiosis means here two individuals are coming together and living together. Two individuals or two different organisms. Here it is one is algae, the other one is fungi. Then what happens? This algae is preparing the food, and fungi that is providing shelter to algae. So algae is preparing the food, and that food is shared with the fungus. Sharing with the fungus. समझा वो बात? मैंने जो बात कर रहा है आपको समझ में आता है? My voice is audible there? My voice is clear, friends? Yes. So algae is preparing the food and sharing that food with the fungus. लेकिन फंगस को बेनिफिट होता है ये रिलेशनशिप में. algae क्या करता है? खाना बना के उसको देता है. सो फंगस को फूड मिलता है. वेरी गुड. लेकिन फंगस भी उसको कुछ रिवार्ड देना है, कुछ रिटर्न देना है. व्हाट फंगस इज प्रोवाइडिंग? मैंने आपको बोला जैसा शेल्टर दे रहे. algae को रहने का जगह देता है. So algae is getting shelter from the fungus, and fungus is getting food from the algae. And this kind of relationship, both the individuals are getting benefited. Algae, fungi, दोनों को benefit होता है. Both the individuals are getting benefited, and this kind of relationship is called symbiosis. And these lichens are showing a symbiotic relationship like this. That is an example for mutualism, or that is an example for symbiosis. You got the point clearly, friends? If any doubt, please ask the question or give me a big yes there. Okay, good. Now you can see अभी lichens में क्या है, कितना individuals होता है? lichen you see we are saying as one type of, this is all lichen only. This is all lichen. This is neither looking like algae nor fungus. ये algae का जैसा भी नहीं है, fungus का जैसा भी नहीं है. ये दोनों सब साथ में रहना चालू किया तभी ये entirely different हो गया. ये एक different what you can say body structure form होता है. Okay, लेकिन इसका अंदर algae भी है, fungus भी है. So how many individuals are there इसमें? ये lichen में two individuals are there. Now in these two individuals, the alga or algal component, now you see two individuals are there. In one component is that algal component that is called phycobiont. ध्यान में रखना है name. This is called a phycobiont. Phycobionts are autotrophs. They are autotrophic. वो भी आपको मालूम है. Autotrophs का meaning क्या है? Repeat करने का जरूरत नहीं. And fungal component, दूसरा component है fungus. Fungal component को बोलता है mycobiont. So phyco मतलब algae, phyco मतलब algae और myco मतलब fungus. So in lichen or lichen, there are two individuals. Algae का technical नाम है phycobiont. They are autotrophs. They are preparing the food, providing to fungus. And fungal component का नाम है mycobiont, and they are heterotrophs. They are depending on algae for their food. Now these are the three different pictures you see, the different types of lichens in the universe. Okay, actually three different types of lichens are there in the universe. आपका बुक में शायद वो नहीं दिया लगता. Okay, अभी three different types of lichens are there, and you can see that where these lichens are living, the lichens are living there on the rock, on the trunk of the tree. ऐसा एरिया पे वो lichen रहता है. ओके, ये जो algal component मैंने जो बोला, phycobiont मैंने जो बोला, उसमें जो algal members होता है ज्यादा करके cyanobacteria या blue green algae. Cyanobacteria और blue green algae like nosto, cannabina वगैरह वगैरह. वो जो उसमें जो protista members में जो cyanobacteria है, वो members fungus का साथ रहता है. Okay, they are living together. Okay, and so the cyanobacteria or blue green algae, that is the most important point. Now second thing you have to say, I already told you this is an example of symbiosis.
Okay. Now the thing is that this is seen mostly on the trunk of the tree. बड़ा बड़ा ट्री का जो बॉडी है, ट्रंक का ऊपर ऐसा व्हाइट पैचेस, आपने जब प्रीवियस स्लाइड में जो देखा हुआ जो पॉइंट्स, अब देखिए प्रीवियस स्लाइड में आपने जो देखा एक ट्रंक ऑफ द ट्री का ऊपर देखिए, और इवन फॉरेस्ट में वगैरह आप जाएंगे तो उनका रॉक का ऊपर, रॉक जो किधर किधर रॉक है, रॉक का ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ट्रंक ऑफ द ट्री का ऊपर देख ये लिचन्स को आपको देखने को मिलेगा। एंड इधर ये स्लाइड में इधर आप देखें तो मालूम पड़ेगा व्हेन दे लिव टुगेदर, इनका पिक्चर देखिए, एक सेक्शन है आपका बुक में नहीं है ये पिक्चर। व्हेन दे लिव टुगेदर, देखिए ये आल्गे कहाँ रहता है, देखिए ये जो फंगस का अंदर, देखिए ये पूरा बाहर साइड जो आपको जो दिखता है पूरा फंगस है, ये फंगस का माइसीलियम है, फंगस का और क्या बोलते हैं माइसीलियम, द प्लांट बॉडी, फंगल बॉडी है ये, जो फाइबर का जैसा वो आपको जो दिखता है। इसका अंदर ब्लैक डॉट में आपको जो दिखता है, देखिए ये जो ब्लैक डॉट में जो दिखता है, दैट इज द algal सेल्स, दैट इज द ब्लू ग्रीन algae। सो algae कहाँ रहता है, ये फंगस का फाइबर का अंदर रहता है, सो इसलिए उसको शेल्टर मिलता है। एंड इट ऑल टुगेदर इट बिकम्स ए न्यू स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ lichen। समझ में आया ये पॉइंट? अभी आपका बुक में मेरे को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस lichen? ये lichen में कुछ इंपॉर्टेंस रहता है। वन इंपॉर्टेंट इज दैट दिस इज इंडिकेटिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। lichens आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। अब इधर देखिए, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, व्हाट डज इट मीन? आप देखिए फॉरेस्ट में जाएगा तो आपको ट्रीज का ट्रंक का ऊपर लिचन देखने को मिलेगा, लेकिन अपना मुंबई में आप देखिए इधर भी किधर भी देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? दिस लिचन कैनॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। अपना बॉम्बे आप बोलेगा तो बॉम्बे हाईली पोल्यूटेड एरिया है, सो पोल्यूटेड एरिया में ये लिचन्स को सरवाइव करने को नहीं होगा। सो वेयर एवर यू हैव सीन लिचन yesterday and today, if it is not there, it indicates that in this area pollution is there। so आपको पोल्यूशन का ये फाइंड आउट करने के लिए एक इंडिकेशन मिलता है। सो वी कैन से दैट इट इज ए वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। आपको समझ में आया फ्रेंड्स ये पॉइंट मैंने जो बोला अभी? ये भी आपको ध्यान में रखना, ये इनका इंपॉर्टेंस है। सो इट्स ए वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ओके, नाउ वन मोर पॉइंट आपका टेक्स्ट बुक से मेरे को बोलना है, दैट इज अभी मैंने आपको बोला लिचन कहाँ होता है, ट्री का ट्रंक बोला। ट्रंक क्या है? ये जो बड़ा ट्री का जो बॉडी है उसको ट्रंक, स्टेम है उसको ट्रंक बोलता है। लेकिन उसके अलावा और एक जगह पे इसको देखने को मिलेगा बोला, कहाँ देखने को मिलेगा बोला ए लिचन? कुछ आइडिया है? जल्दी बोलो ना। नो, लिचन लिचन मैंने बोला एक ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्री का ऊपर बोला, दूसरा रॉक, दूसरा मैंने बोला रॉक, ये पानी में रहता नहीं है। लिचन्स आर सीन देयर ऑन द रॉक। आप ओशन में, ओशन नहीं है, रिवर में, गांव में जो रिवर वगैरह है, रिवर में उधर जाके देखिए, जो रॉक का ऊपर आपको ये देखने को, ये लिचन देखने को मिलेगा। ओके, सो कहाँ लिचन है? ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, आई एम सॉरी, ऑन द रॉक। सो लिचन इज हैविंग वन रोल दैट इट रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स। ये केमिकल्स रिलीज करने की वजह से क्या होता है, वो कहाँ रहता है, उधर का जो रॉक है वो धीरे धीरे क्या बोलता है, उसका एक पर्टिकुलर टर्म है, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड राइट नाउ। धीरे धीरे वी कैन नोटिस दैट द रॉक कन्वर्ट होकर सोइल बन जाता है। ओके, सो दैट इज बिकमिंग सोइल देयर। आपका बुक में वो किधर भी नहीं दिया है, मैं वही ढूंढ रहे। So you can see that lichens are having an important role in the formation of soil, उतना ही लिखा है, दूसरा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन रॉक क्या होता है? वर्ड इज दैट विदरिंग, द वर्ड मैंने बोला ना विदरिंग, और रॉक का ऊपर जो केमिकल डाल के और रॉक को विदरिंग करेगा, विदरिंग करके क्या करेगा, रॉक विल बिकम सोइल, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सोइल फॉर्मेशन।
एंड धीरे धीरे वहां प्लांट्स डेवलप होएगा। पेज नंबर 15 सेकंड कॉलम में है। ओके, सो इतना है आपको लिचन के बारे में स्टडी करने के लिए। ओके, so you have to remember this important point that one is having that one is that it is very sensitive to pollution, and so it indicates as a, or it acts as an indicator of pollution. Okay, second thing we can notice that it is having an important role in the formation of soil. मैं 2 points लिचन का importance करके आपको बता दिया है। ओके, सो इतना है आपको लिचन के बारे में बात करने के लिए। मैं अभी आपका स्लाइड ये स्लाइड नेक्स्ट दिखाता हूं, तभी आपको मालूम पड़ेगा ये टॉपिक इधर खत्म हो रहे करके। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 2। नाउ यू प्लीज टेल मी, यू हैव एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड? आपको कुछ डिफिकल्टी? में ज्यादा हिंदी बोल रहे वो भी वो लैंग्वेज का बैरियर किसको किसको है, वो तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं तो भी मेरा साउथ इंडियन हिंदी है, फिर भी आपको समझ में आएगा लगता है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहे हैं। यू हैव एनी डिफिकल्टी सो फार? अपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर 2 चैप्टर अपने खत्म कर दिया, सो एनी डिफिकल्टी? ओके, नाउ यू आर ऑल राइट ना विद पावर पॉइंट में जो दिखा रहे इधर? यू आर ऑल राइट, हैप्पी? यू आर हैप्पी? यू आर सेटिस्फाइड? ओके, मैं अभी ये जो पावर पॉइंट आज का ये पावर पॉइंट ये चैप्टर खत्म हो गया, मैं ये प्रेजेंटेशन इधर बंद करता हूँ। अभी मैं आपको दूसरा कुछ स्लाइड्स शेयर कर रहे हैं। आई मीन स्लाइड नहीं है, पावर पॉइंट शेयर करेगा अभी। पावर पॉइंट भी नहीं, मैं वापस अपना इसमें आ गया और नहीं है, मैं दूसरा इसमें जा रहे हैं। ओके, नाउ यू जस्ट सी आपका टेक्स्ट बुक का पेजेस इधर दिखता है आपको। ओके, now you see lichen coexistence of algae or fungi, or you read and understand. See टेक्स्ट बुक में जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस ऐसा पढ़ाने को तकलीफ है, सो आई नेवर डू लाइक दैट। सो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया। सो एवरीथिंग इज देयर इन दिस। देखिए, माइक्रोबायोम बोला, सिम्बायोसिस बोला, और लिचन्स प्रोवाइड फूड, फंगस प्रोवाइड शेल्टर, ये बताया है। और सेंसिटिव पोल्यूशन मैंने बोला, और पोल्यूशन इंडिकेटर्स बोला, और सोइल फॉर्मेशन बोल दिया। सो ये टॉपिक इधर खत्म हो गया है। नाउ व्हाट इज योर वर्क? नाउ हमको थोड़ा एक्सरसाइज देखना है ना। आपका ये टेक्स्ट बुक में अभी ऐसा वाला कैन यू टेल करके क्वेश्चन है, कुछ लोग सॉल्व किया है। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप ये सॉल्व करके उनका फोटो निकाल के भेजो मत। क्यों भेजो मत बोल रहे? रीजन देखिए, मेरा मोबाइल सबका डिवाइस उसका जो कैपेसिटी है लिमिटेड है। अभी मेरे को अपना क्लास का 80 स्टूडेंट्स का ऐसा व्हाट्सअप, मेरा ये जो पीडीएफ आना चालू करेगा तो 2 दिन में मेरा मोबाइल हैंग हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ उसका ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप आपका नोटबुक में ये सभी क्वेश्चंस, मतलब ये चैप्टर में हमको जो पढ़ना है ये साथ, उधर से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप आंसर कर लीजिए। और आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने को नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन आप आंसर नहीं मिल रहे, फाइंड आउट करने को तकलीफ होता है, तो बता दीजिए और हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, उसमें टाइम फाइंड आउट करके हम, लेकिन नोट करके रखो क्या डाउट है। सो फिर नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज डालो, मेरे को ये पार्ट में ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, क्या है आंसर करके पूछोगे तो मैं उसका आंसर रेडी करके रखूंगा। ओके, आपको देने के लिए जब मिलेगा तभी बोलने के लिए, सबके लिए फायदा होगा। मैं क्लास में इधर बोलेगा तो सबको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे को व्हाट्सअप कर लो, सो फिर वो हिसाब से हमको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन अभी एक सिंगल आंसर है, व्हाई आर वायरसेस कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन्स? ये टेक्स्ट बुक में ये बीच में कैन यू टेल करके, मैं अभी ये चैप्टर का बिगिनिंग से देगा तो आपको मैंने एक बार दिखाया था। देखो मोनिरा, इसका पहले कुछ नहीं है, हमको यहाँ से स्टडी करने का था। सो इधर से स्टडी करते टाइम देख लीजिए, इधर है। ओके, आपको देख सकते हैं, मेरे को देखने को नहीं होगा क्योंकि मेरा स्क्रीन पे और कुछ इंफॉर्मेशन पड़ा है आपका बुक का ऊपर। ओके, देखिए वहाँ कैन यू टेल करके एक क्वेश्चन आ रहे, देखिए ये मैं असाइनमेंट में डाल के दिया दे रहे अभी। ओके,
सो जैसा इस नीचे जाने का, नीचे जाएगा तो उधर और भी देखने का, इधर है। ओके, ये काय के बारे में, फंगस के बारे में है। ओके, फंगस के बारे में इधर है, प्लांट के बारे में या प्लांट एनिमल। ओके, सो इधर है वायरस के बारे में। सो इतना क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक से आपको कॉपी करके सॉल्व करना है। अभी हम लोग इधर जा रहे, नाउ जस्ट कम्स टू दिस पॉइंट। ये वाला आपका एक्सरसाइज सॉल्व करने को जा रहे हैं, ये भी आपको आपका बुक में सॉल्व करके लिखना है। दिस ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व एंड राइट। ठीक है, आर यू गेटिंग मी फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग मी? एक बिग वाई या बिग एन कोई भी चलेगा। हाँ, ओके। सो इधर देखिए, नाउ दिस इज योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। मैं आपको पूछेगा तभी मेरे को आंसर बोलना। मोनिरा में सेल वॉल कौन सा है? इधर देखिए, मोनिरा में सेल वॉल, अब इधर लिखा है प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा में। फंगस में क्या है? प्लांट में लिखा है प्रेजेंट सेलुलोज, और एनिमलिया में ब्लैंक है। इधर क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट है। ओके, प्रेजेंट है ना? पेप्टिडोग्लाइकन या प्रेजेंट है। ओके, और फंगस में काइट, मेड अप ऑफ काइटिन, प्रेजेंट है, राइट? और एनिमलिया में एब्सेंट है। ओके, आपको क्लियर हो गया? अभी जैसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लांट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस और नो, प्रेजेंट और नॉट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो तो हमको जल्दी आगे आगे जा सकते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट in plant A, you can see that nuclear membrane is present। क्यों present है? present है इसलिए ये यूकैरियोट्स है। देखो, सभी यूकैरियोट्स बोलने का कारण present है। इधर absent है, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स बोलता है। सॉरी, प्रोकैरियोट होने का कारण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये यूकैरियोट्स होने का कारण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन present है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनिरा यूनिसेल्युलर, बाकी सब इधर दिया है। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा कौन सा टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा मेंबर्स आर यूनिसेल्युलर, ऑल यूनि। मैंने आज सुबह भी पूछा आपको, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आर प्रोटिस्टा। ओके, अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, मोनिरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोनिरा, मोनिरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ, ऑटोट्रॉप्स है, ओनली ऑटोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स दोनों में है। मतलब ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटो भी है, हीमो ऑटो भी है, और हेटरोट्रॉप्स भी है। अभी फंगे, फंगे कौन सा टाइप है? फंगे कौन सा टाइप? हेट्रो, वेरी गुड। और प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, एनिमलिया हेटरोट्रॉप्स। और इकोलॉजिकल फंक्शन, अभी इसका रोल, फंक्शंस, मोनिरा मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स, प्रोटिस्टा मेंबर्स आर, प्रोटिस्टा मेंबर उसका वेरियस रोल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह, मिल्क लैक्टेशन, आई मीन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, और ये सब मैंने आपको बताया था। मल्टीपल, मतलब मल्टीपल रोल है। ओके, इवन प्रोड्यूसर्स का कैटेगरी में भी आ सकता है, टू सम एक्सटेंट दे आर प्रोड्यूसर्स, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये रोल बोलेगा तो तीन रोल मैंने बताया था प्रोटीज का, आपको याद है क्या? आई डोंट नो। वन इज दैट एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, सेकंड इज दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन, तीसरा है कर्ड कन्वर्टेड इनटू मिल्क, बोला, याद है? वन सेकंड, वन सेकंड, मैं उधर जाके आपको अभी दिखा के बोलूंगा। प्रोटिस्टा मेंबर्स, प्रोटिस्टा मेंबर मैंने उधर बोला है। प्रोटिस्टा मेंबर्स में तो मैंने आपको बोला है इसका, इसका यू बैक्टीरिया का फंक्शंस बोला, सॉरी, इसमें डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स भी है।
दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, इसका फंक्शंस है, उसमें मल्टीपल रोल है। अभी ये डिकम्पोजर्स करके बोलने को नहीं होएगा, क्योंकि ये कंज्यूमर बोल रहे जैसा बोलना थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको अलग रोल है इधर। क्योंकि अभी डायटोमेशियस अर्थ के बारे में बोलोगे तो हमको डायटोमेशियस अर्थ मिलता है, उसमें से यूजफुल है पेंटिंग के लिए, उसके लिए अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। ओके, और एनिमल प्रोटोसोवेंस के बारे में बोलोगे तो वो तो डिसीज देता है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया वगैरह वगैरह डिसीज मिलता है, डिसेंट्री, ये सब होता है। ओके, और इसका मतलब ये जो पॉइंट, एक सेकंड मैं अभी बताता हूँ उधर क्या लिखना है। So you write decomposes, right here decomposes, और इधर प्लांट्स का उधर आप लिखो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस लिखना, ऑटोट्रॉप्स भी नहीं है, प्रोड्यूसर्स। तो उनका रोल एक जगह पे प्रोड्यूसर है, बाकी जगह पे डिकम्पोजर्स है, और एनिमल का जगह पे कंज्यूमर है, वो इकोलॉजिकल रोल है। उसके आगे ये आपको लिखने का जरूरत नहीं, दिस नो नीड टू राइट, क्योंकि ये आपका सिलेबस में ये साल नहीं है। अभी थोड़ा जल्दी बात कीजिए, एक क्वेश्चन आंसर थोड़ा फास्ट क्विकली देखने को जा रहे हैं हम लोग। ओके, 1 सेकंड है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से हमको देखना है, एक सेकंड में आ रहे उधर। Okay, now the first question, which of the following shows single stranded RNA and lacks protein cord? What is answer? आज का पॉइंट है, या वेरी गुड, वायरॉइड। तो जो किसका पास टेक्स्ट बुक है उसको वो मार्क कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज दैट वायरॉइड। नंबर 2, बी, causative agent of red tide is, causative agent of red tide, yeah, very good, dinoflagellates, very good. Select odd one out of heterotrophic bacteria. Okay, odd one out of heterotrophic bacteria, nitrogen fixing bacteria, lactobacilli, methanogens, and antibiotic production. Which one is the correct answer? Methanogens. Okay, methanogens, because nitrogen fixing bacteria, lactobacilli, antibiotics, ये सब एक group है. Okay, so methanogens. Then next one is that paramecium. Paramecium बोलेगा तो ciliated protist है। ऐसा तो प्लाज्मोडियम कौन सा है? पैरामेशियम ciliated है, प्लाज्मोडियम स्पोरोसोन। ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मोनीरा? अभी सेलिएंट फीचर्स ऑफ मोनीरा मैं आपको अभी नहीं बोल रहे, मोनीरा का जो फीचर्स मैंने आपको क्या क्या बताया है वो एकदम शॉर्ट फॉर्म में मोनीरा का कैरेक्टर्स आपको लिखना है। सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस क्रिएट करने का कुछ कारण रीजन मीन्स जरूरत नहीं है। अभी ऐसा सेलिएंट फीचर्स ऑफ मोनीरा बोलेगा तो अभी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ये करने का जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेल्युलर है, ओके, मोनीरा है, ओके, प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल कैसा है, न्यूक्लियस कैसा है, ओके, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, और लोकोमोशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है। सो ऐसा एक एक रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें 4-5 पॉइंट्स आपको मेन करके लिखना, ठीक है। Now, what will be the shape of bacillus and coccus type of bacteria? Bacillus का shape और coccus का shape. Bacillus का shape क्या है? Shape of bacillus rod. Very good. Rod. और coccus comma shape. Comma shape. Comma shape. Are you sure? Yeah.
स्पेरिकल, राउंड शेप। क्योंकि मैं आंसर जो आ रहे हैं ना चैट बॉक्स में, जो आंसर आ रहे हैं मैं वो आंसर रीड कर रहे हैं। ओके, सो कॉकस बोलेगा तो विब्रियो है कोमा शेप, और जो राउंड जो बोलता है दैट इज दिस वन कॉकस टाइप। नाउ उसके आगे सी वाला क्वेश्चन आप कैंसिल कर दीजिए, वो आपको अभी एसएल स्टडी नहीं करने का। व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो आपको अभी नहीं है, एसएल नहीं है। ओके, नंबर 3 में जाइए, यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। व्हाट आर द यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। अभी यूजफुल बैक्टीरिया कौन सा है, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन सा है, आपको उधर देखना पड़ेगा। अभी यूजफुल में लैक्टोबासिलस मिल्क दैट टर्न्स टू कर्ड, ओके, और दूसरा विटामिन एंटीबायोटिक्स हमको प्रोड्यूस कर सकता है। और या दैट इज टू मेन पॉइंट्स ओवर देयर आर यूजफुल, या 2 या 3 पॉइंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन ओबीआर करके। देन हार्मफुल बोलेगा तो कौन सा है, कॉलरा का डिसीज, लेप्रोसी का डिसीज, टाइफाइड का डिसीज, और डिप्थीरिया, टेटनस। सो ऐसा अलग अलग डिसीज कॉज करने वाला है ये हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, सो टेक्स्ट बुक रेफर कर, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी 5 किंगडम सिस्टम, राइट शॉर्ट नोट ऑन, एकदम शॉर्ट फॉर्म में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बात करना है। ठीक है, सो शॉर्ट फॉर्म में किंगडम का नाम लिख के रख के फायदा नहीं है। अभी वो बेसिक पॉइंट्स मैंने बोला ना, 5 बेसिक कैरेक्टर का ऊपर ये डिविजन होता है। वो डिविजन बॉडी स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है क्या, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है क्या, न्यूट्रिशन कौन सा टाइप है, वो जो 5 पॉइंट अभी हमने जो प्रीवियसली जो फिल किया ना, जैसा पॉइंट्स डाल के आपको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन करना है। और फंगस का यूजफुल, फंगस का यूज में अब भी बात, या फंगस यूजफुल क्या, फंगस यूजफुल आज बात नहीं किया। फंगस का यूजेस क्या है, एडिबल फंगस है, डिसीज देने वाला फंगस है, उधर भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमको पेनिसिलिन मिलता है, एंटीबायोटिक है वो। सो पेनिसिलिन मिलता है, सो यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। सो मेडिसिन मिलता है और डिसीजेस होता है, ये सब यूजफुल में भी आएंगे। ओके, फंगस के बारे में बात करते मैं, यूजफुल फंगस आपका टेक्स्ट बुक में जो मैं देखता हूँ अंडर हेडिंग में दिया है क्या, किधर भी। हाँ, लेकिन आप आंसर आप ऐसा है, मशरूम इज अ फंगस वी आर यूजिंग फॉर ईटिंग और एडिबल है, और पेनिसिलिन फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। सो लाइक दैट मेनी, इवन आपको मालूम है जो पनीर बनाने के लिए भी, पनीर भी फंगस का आइटम है। ओके, सो ये सब उसमें यूज कर रहे हैं। नाउ अभी एक देखिए, एक डायग्राम मिल जाएगा, वो आपको फिल करना है। ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पॉइंट है। आप कैसे लिखेंगे ये पार्ट, आपका टेक्स्ट बुक में एक बार देखिए वो डायग्राम, टेक्स्ट बुक में वो डायग्राम देखिए, ये कैसे फिल करेंगे। इधर क्या है, व्हाट विल कम ओवर हियर, इधर विल, हियर यू हैव टू राइट प्लांट्स, इधर यू हैव टू राइट, इधर क्या आएगा, प्लांट्स, फंगे, और इधर एनिमल्स। ओके, और इधर क्या आएंगे, मोनीरा, मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांडे, फंगे, एनिमेलिया, ऑल 5 किंगडम्स। ठीक है, अभी आगे, ड्रॉ नीड लेबल डायग्राम ऑफ पायरामीशियम। पायरामीशियम आपका टेक्स्ट बुक में है, डायग्राम ड्रॉ करो। यूक्लिन आपका टेक्स्ट बुक में है, डायग्राम ड्रॉ करो। और टोबैको मोसाइक वायरस ड्रॉ करो, वो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, मेरे को उसमें कुछ करने को नहीं, बोलने को नहीं अभी। ओके, अभी ये सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ वायरस, इधर क्या लिखेंगे, प्लांट्स, bacteriophage. Okay, so there you have to write, one is plant virus, second is that animal virus, and third one is that bacteriophage. Okay, so I hope that is clear to you. Now 7th question, identify the following diagram, label them and write detailed information in your own words. लेकिन उतना डिटेल में जाने को मैं नहीं बोल रहे, आप खाली इसको कम से कम बोल दो, ये आइडेंटिफाई करो ये कौन सा एनिमल है, आई मीन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना। बाकी आप
आप बुक रेफर करके उसका आंसर तो फाइंड आउट कर दीजिए। और ये क्या है, बी वाला क्या है, फंगस है, फंगस में म्यूकर, म्यूकर। ओके, नाउ ये क्या है, व्हाट इज दिस, स्लीपर एनिमल कूल, या वेरी गुड, पैरामीशियम। ओके, ये क्या, वायरस, कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज, गुड। और ये क्या, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, हाइफा आस्परगिलस। ओके, राजन कुमार ने लिखा है आस्परगिलस, आस्परगिलस इज द राइट आंसर। ये क्या है, मशरूम है, अगारिकस, वेरी गुड। नाउ उसके बाद द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये आपको नहीं चाहिए, ये आपका सिलेबस में ये सेल नहीं है। ओके, आपको स्टडी नहीं करने का, छोड़, ये छोड़ दो। और 9th नंबर देखिए, मैच द फॉलोइंग, मोनिरा, मोनिरा का एग्जाम्पल बोलिए इधर, मैच द फॉलोइंग, मोनिरा एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया, वेरी गुड। प्रोटिस्टा एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर डाइटम्स नहीं है, प्रोटिस्टा, सी, राइसोपस। ओके, राइसोपस है क्या, है क्या, प्रोटिस्टा एग्जाम्पल, स्पायरोगेरा, हम्म, ओके, इधर एक एक्चुअली इनकम्प्लीट है, ये आपका टेक्स्ट बुक में आया हुआ मटेरियल है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं अभी। एक सेकंड है, या इसमें एक मिस्टेक है, वो उन लोग का मिस्टेक है। स्टूडेंट्स, यू प्लीज राइट इन योर in your what you can say test book, if the test book is with you, you write there, ये इसका नाम है, इधर लिखो मिक्सोमाइसिट्स, राइट देयर मिक्सोमाइसिट्स, या एक्स मिक्सो, ओ अभी नहीं आ रहे, no I cannot write over there, I cannot write over there, I cannot show you writing. ये कैंसिल करो, रॉन्ग है, करेक्ट आंसर, करेक्ट यू हैव टू राइट देयर मिक्सोमाइसिट्स, so this point you have to write there, ये उनका मिस्टेक है वो, ठीक है। so monera example, you can see monera example is cyanobacteria, okay, this one example cyanobacteria, sorry, b protista myxomycetes, ये then Plantae rhizop, sorry not rhizopus, Plantae we can say, अरे पूरा मिस्टेक करके रखा है लो, पूरा मिस्टेक करके रखा है, टेक्स्ट बुक में इतना मिस्टेक्स होते हैं। वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक मिनट है।
ओके, ये राइसोपस कौन सा कैटेगरी में आता है पक्का मालूम है? सो राइसोपस इज कमिंग अंडर फंगस, क्योंकि इधर आंसर बुक में दिया है वो फंगस में डाला है, सॉरी राइसोपस प्लांडे में डाला है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है वो मिस्टेक है करके। ओके, सो प्लांडे क्रॉसिंग विथ स्पाइरोगेरा एंड फंगे क्रॉसिंग विथ राइसोपस। समझ में आया पॉइंट? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इधर, थोड़ा मिस्टेक उन लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक में, प्रिंटिंग में वो लोग जो पॉइंट दिया है आपको ऑप्शन दिया उसमें गलत है। ओके, सो इसलिए ये पॉइंट ऐसा हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या है डिलीशियस एनिमल्स? मिक्सोमाइसिट्स भी हो सकता है, क्राइसोफाइट्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है राजन, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरे टेक्स्ट बुक में मिक्सोमाइसिट्स दिया है, इसलिए मैं मिक्सोमाइस कट करके मिक्सोमाइसिट्स लिखा। यू कैन राइट मिक्सोमाइसिट्स, एनी प्रोटिस्टा मेंबर यू कैन राइट ओवर देयर, इवन डायनोफ्लैजिलेट्स यू कैन राइट, डाइटम यू कैन राइट, एनीथिंग, इवन डाइटम लिखेगा तो भी करेक्ट है। ठीक है, आपका बुक में रिक्सिया दिया है, रिक्सिया दिया तो दैट कम्स अंडर प्लांट, प्लांटे में आता है। तो इसलिए मेरा ये नया बुक है, नया बुक में जो मिस्टेक आ गया मालूम नहीं। ठीक है, सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ वी कम टू कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग देखिए, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा क्या है? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, व्हाट इज दैट प्लांट लाइक प्रोटिस्टा? Chrysophytes, chrysophytes, that is plant like protista. And endamoeba, endamoeba, endamoeba कौन सा टाइप है? एनिमल, एनिमल लाइक। ओके, सो वेरी गुड। ओके, प्रोजेक्ट के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल रहे। सो बाय दिस ना ऑल दिस क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड। अभी मैं आपको छोटा सा असाइनमेंट देता हूं, ज्यादा कुछ इस 8 चैप्टर में स्टडी नहीं करना, एकदम समरी 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 करके करना, एकदम लंबा स्टडी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज मैं आपको बोल रहे, पहला चैप्टर का वेटेज 2 मार्क है। फर्स्ट चैप्टर का वेटेज मैं आई टेल यू द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का वेटेज 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क का क्वेश्चंस आपको मिलेगा और 2 मार्क आपको आंसर करना पड़ेगा। सो वेटेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 2/3, 3 मार्क का क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क के लिए 2 मार्क्स के लिए आपको आंसर करना है। सिमिलरली सेकंड चैप्टर का वेटेज भी मैं आपको बोल रहे, नोट करके रखो, 3/4, 3/4, 3 मार्क का क्वेश्चन आपको आंसर करना जरूरी है। ओके, सो यू हैव टू आंसर 3 मार्क्स क्वेश्चंस। नाउ असाइनमेंट्स अभी ऑलरेडी ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, तो आपको जो टेक्स्ट बुक का अंदर जो दिया हुआ क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस अभी मैं आज आपका ग्रुप में बोला था, गूगल क्लासरूम में ये अभी पोस्ट करेंगे। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू सिट एंड राइट द आंसर्स। ये जो 13 क्वेश्चंस मैंने इधर जो दिया है वो आपका टेक्स्ट बुक से जो आपका रिकॉर्ड पार्ट से लिया है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख के रखा है, यू सॉल्व इट। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस, कुछ 23 क्वेश्चंस मैंने इधर दिया है, ये जो प्रीवियस 10 इयर्स में एग्जामिनेशन को जो पूछा हुआ जो क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन को जो पूछा है प्रीवियस 10 ईयर में जो पूछा, कुछ क्वेश्चंस मैंने इधर डाला। सो ये क्वेश्चंस आपको आंसर करना। ठीक है, ये है आपका असाइनमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर फ्रेंड्स नाउ? Everything is clear? Okay, so if everything is clear, now we will leave. Now today itself you will get this question paper or this assignment in the Google Classroom. Okay, और वीडियो लास्ट लेक्चर तक जो वीडियो है वो भी मैंने डाला, आज का कल शाम को डालेगा। कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को आपका आंसर बुक भेजने का जरूरत नहीं। आई रिपीट, you write, you solve the questions and write the answers in your notebook and keep it ready with you. मैं कभी भी पूछेगा तो दिखाओ करके बोलेगा तो तुरंत मेरे को इधर ऑनलाइन में आपको दिखाना पड़ेगा if when I'm asking, but you keep it ready, but no need to make any photograph of it, no need to make
PDF of all these things. Nothing to be done. You just complete your assignment. Same book. First chapter का assignment मैंने आपको दिया नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें से, खाली वो 5 पॉइंट्स है ना, वो टेक्स्ट बुक में जो है वही मैंने लिखने को बोला था फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, सेकंड चैप्टर थोड़ा लंबा है ना, इसलिए मैं दे रहे आपको। ओके, सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू। नाउ वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो एज पर योर टाइम टेबल। ओके देन, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।